My dear students, class 11th, I am talking about resolution of vector. Resolution of vector. बेटा आपने स्टडी किया एडिशन ऑफ वेक्टर. Addition. What it means? You have two vectors. Suppose this is vector A and suppose this is vector B. And if you are adding, this is what I am talking about, addition. A for addition, you have a resultant R. And what is resolution? I am talking here. You have here a vector R and applying resolution, you have resolve this R, means आपने इस R को break कर दिया in the direction of vector A and in the direction of B. This resolution is reverse of addition, or we can say addition is reverse of resolution. उल्टा भी लिख सकते हो, resolution is reverse of addition. Let me tell you here, suppose this is a vector, say R, this is a vector, say B, this is a vector, say A. Now it is an interesting thing. You have to break this R in the direction of vector B and in the direction of A. ऐसा हो सकता है कि R वेक्टर का B की डायरेक्शन में एक कंपोनेंट बने जो इस B का ट्वाइस हो, इस B का थ्राइस हो, इस B का हाफ हो, बट मे बी, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ A मे बी इस R का हाफ A की डायरेक्शन में हो, R का ट्वाइस हो A की डायरेक्शन में. इट मे पॉसिबल, मीन्स आपको R को A और B डायरेक्शन में ब्रेकअप करना है, तोड़ना है. Let him, I am here going to tell you, in addition this is input, in addition this is input side and this is output side. इनपुट में ये है, आउटपुट में R मिला. रेजोल्यूशन में क्या है, इनपुट में तो R होता है, उसको रिजोल्व करना है, रिजल्ट में आउटपुट में क्या मिलता है आपको, A और B वेक्टर में उसके कंपोनेंट्स मिलते हैं. नाउ this is what uniqueness of component vectors. बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है. आई एम गोइंग टू टेल यू. let this is say R vector and this is say B vector and this is say A vector. इस R के जो कंपोनेंट B और A डायरेक्शन में होंगे वो फिक्स होंगे, वो यूनिक होंगे. अगर R का B डायरेक्शन में कंपोनेंट ट्वाइस ऑफ B है, B का दुगना है, R का कंपोनेंट A की डायरेक्शन में A के इक्वल ही है, तो ये यूनिक है. ऐसा नहीं हो सकता कि इस R का कंपोनेंट B की डायरेक्शन में कुछ और हो जाए. Let me tell you, this is say R, this is the direction of B say, and this is the direction of A. A की डायरेक्शन में, इस A की डायरेक्शन में इस R का टुकड़ा हम कह सकते हैं this is MA vector. M is any number and in the direction NB vector. This MA component of vector R in the direction of vector A, and here I am talking
NA vector, this NA vector, this is what component of vector are in the direction of, sorry, this is N, this is MA, this is NB. Component of vector are in the direction of vector B. Therefore, by using parallelogram law, you can write this, what I am writing, R vector is equal to MA vector plus NB vector. This is one equation. And suppose I am here considering, वैसे तो मैंने बताया कि ए की डायरेक्शन में यही कंपोनेंट होगा, दूसरा नहीं हो सकता, बी की डायरेक्शन में एन बी होगा, दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपनी एजम्पशंस के लिए एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट हियर एज्यूमिंग, हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं, लेट एज्यूमिंग एम डैश ए एंड एन डैश बी आर components of vector are in the direction of vector A and vector B. अभी तो हमने एम ए और एन बी माना, लेकिन है तो ये यूनिक ही, यही हैं और नहीं हो सकते, लेकिन मैंने एज्यूम कर लिया कि ये भी हैं, तो देयरफॉर वी कैन राइट वेक्टर आर इज इक्वल टू एम डैश ए प्लस एन डैश बी। तो वेक्टर आर जो है उसको पैरेललोग्राम से आप इस एम डैश ए और एन डैश बी भी लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन सेकंड। आर सेम ही है तो ये साइड सेम हो गई, तो राइट साइड्स को इक्वल रख दें। तो आई एम पुटिंग हियर व्हाट आई एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर इक्वल टू एम डैश ए वेक्टर plus n dash b vector, and rearranging m a vector minus m dash a vector equal to n dash b vector minus nb vector, and here you have common outside vector A, m minus m dash, here vector B, n dash minus n। आप इसको इधर ले आए तो आप दिस इम्प्लाइज A वेक्टर m माइनस m डैश, आप इसको लिख दें माइनस n डैश माइनस n वेक्टर बी, और इस तरफ आपका जीरो, यू कांट राइट जीरो वेक्टर। अब ये नेगेटिव बाहर ले लें तो यू कैन राइट दिस वेक्टर ए एम माइनस एम डैश, ये प्लस हो जाएगा, इसको आप बाहर लेते हैं तो यू कैन राइट दिस एन माइनस एन डैश वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब ये और ये, अब ए वेक्टर तो जीरो वेक्टर है नहीं, बी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है। अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो वेक्टर होते तो फिर तो ये इक्वेशन प्रूव हो जाती। देयरफॉर इस पार्ट को m माइनस एम डैश को इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा और n माइनस एन डैश भी जीरो होगा। ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज करेक्ट ओनली व्हेन m minus m dash equal to 0. What it means? M equal to m dash and n equal to n dash. So simple. This is proof. क्योंकि हम यहाँ क्या कह चुके हैं कि ये जो m dash a है और ये जो n dash b है ये कंपोनेंट्स हैं, और इनिशियल हमने ये m और m a वेक्टर और n b वेक्टर एज्यूम किया, और हमारे m डैश और m इक्वल आ गए, इट मीन्स कंपोनेंट्स यूनिक हैं। तो दिस इज व्हाट यूनिकनेस, इसको हम कहेंगे यूनिकनेस। मीन्स
आपका ये जो वेक्टर आर है इसके कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ए और बी की डायरेक्शन में यूनिक ही हैं। थैंक यू।